Okay, friends, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe. Your family members, your parents, friends, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing current electricity, and it is a very important chapter as per your board examination. Mostly 10 marks in the Gujarat board, almost 10 marks weightage. Generally 10 marks question will be asked from this chapter, and for the CBSE board also it is a very important. Friends, we have discussed some topic of this chapter, and today I'm going to send you this file or this notes of the third chapter. I already had prepared the notes, so you will getting this notes by today. So are you able to see the notes on your mobile screen? Yes, sir. Okay, so I am giving you which question information regarding on the which question you need to prepare and which questions are only for the understanding. So one by one, starting from the very first page. So, introduction. In the introduction, it is mentioned that the first and second chapter was based on the state electricity. First and second chapter are based on the static electricity. On that chapter, charge was residing stationary. So that was a static electricity. But in the third chapter, I had just moved the charge. When you apply the potential difference, the charge start moving and the electric current is produced. So that the name of this chapter is a current electricity. So that was mentioned in the introduction part of this chapter. Then after, what is electric current and what is the formula of electric current? So the first question is only for the understanding. It is not going to be asked. It is for your knowledge, for your understanding. So concept of the electric current is explained in the first question. So it is nothing but it is the amount of the charge per unit time interval, amount of electric charge passing from any cross-sectional area of a conductor in a unit interval time is defined as electric current. So the basic formula of electric current, if you remember, I is equals to dq by dt. I is equals to dq by dt. That was the basic formula of electric current. But if the current is steady, you had learned in the 10th standard that I is equals to q by t. But that is not valid always. It is only for the steady current. So if the current is steady, then you can apply the formula I is equals to q by t as well. One more thing, conventional current is always taken in the direction of positive charge. So that means if you find that in some conductor electric current, in some conductor electrons are flowing like this, if the motion of the electron in this direction, then the conventional current will be in the opposite direction, because the conventional current is considered to be the motion of the positive charge. So I can say the conventional current is taken in the direction of the motion opposing to the motion of electron. The conventional current is taken in the direction opposing to the motion of electron. And the unit of the electric current is that etc. That kind of thing is explained in the first question. Second question, 2-mark question. What is current density and what is its formula and what is its unit and dimensional formula? So friends, this is a 2-mark question. Current density. Whether we had discussed this question or not, whether we had discussed about anything about the current density or not, tell me. क्या मैंने करंट डेंसिटी के बारे में कुछ पूछा बताया था कि बाकी है? સર એટલે એ જ કીધું હતું કે આપણો વોલ્યુમ ના આવે. હા ના, આખું સમજાવ્યું તો, બધું સમજાવ્યું તો. હા હા સર સમજાયું. આઈ જા. So amount of electric current flowing perpendicularly to the unit cross sectional area. Generally in the density, in the denominator there is a volume, but this is the exceptional quantity. Generally in the quantity named density, in the denominator it should be a volume. Like density is equals to mass upon volume, energy density is equals to energy upon volume, like a number density is equals to number of particle per unit volume. But current density is a different. It is not a current upon volume, it is a current per unit cross sectional area. The amount of the current passing perpendicularly
to the unit cross-sectional area is defined as the electric current density at that point. So average current density is defined as a delta I by delta A. So instantaneous current density can be given by di by dA. So di is equals to JdA. In taking integration di, integration J dot dA. So that is the general form. This is a general formula of a current in the form of current density. And if J is constant and the cross section is a perpendicular, if the cross section becomes perpendicular, then theta becomes, बताओ अगर क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर है तो थीटा क्या होगा? 90. नहीं, यहाँ पे ये चीज तो 0. पता है आपको. हाँ, यही तो बात है, ये तो बात है, यही तो चीज है जो आपको याद रखना है. यहाँ पे जो एंगल बनेगा J डॉट डी ए में, तो ये J डॉट डी ए में जो एंगल बनेगा दैट इज अ J डी ए कोस थीटा. बट दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर J एंड वेक्टर डी ए. अब वेक्टर J का जो डायरेक्शन होता है ना, वो तो करंट के डायरेक्शन में ही होता है. वेक्टर J का जो डायरेक्शन होता है वो करंट के डायरेक्शन में ही होता है. मतलब अगर क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर है तो वेक्टर A का डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में आ जाएगा. देखो, तो नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर J एंड वेक्टर A? 0. तो अगर क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर है एंड अगर J कांस्टेंट है, देन वी कैन से integration J dA becomes a J integration dA. So then it becomes a J integration dA, and that's why it becomes a I ja, or J equals to I by E. So this second question you need to prepare as a 2 marks. तो ये जो second question है वो आपको as a 2 mark prepare करना है. Third question, Ohm's law, we had discussed in that question what is the resistance and on which parameter does the resistance depend on the dimension type. It's a unit and dimensional formula. We also had discussed about the conductance. Conductance के बारे में भी हमने डिस्कस किया था. एंड ओहम्स लॉ के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट ओहम्स लॉ का ओबे करता है तो उसका ग्राफ I वर्सेस V ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है. ऐसा भी डिस्कस किया हमने. ऐसा भी डिस्कस किया था कि जो स्लोप कम होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर कम क्यों होता है, वो भी हमने डिस्कस किया था. तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको 2 मार्क्स में प्रिपेयर करना है. क्वेश्चन नंबर 2, 3 and 4. 4 is the limitation of the Ohm's law. So we also had learned the limitation of the Ohm's law as well. तो ये क्वेश्चन नंबर 2, 3 and 4 आपको लर्न करना है एज ए 2 और 3 मार्क्स. अब फोर्थ क्वेश्चन जो है, सर बोलो. વોલ્ટ અને વોલ્ટેજમાં શું ડિફરન્સ છે? Volt is the unit and voltage is the thing you are applying between the two cross sectional. Voltage no matlab when you connect the battery to the any devices, suppose we can say you are applying the voltage. So voltage is the device or the thing we are applying, and volt is the unit of the voltage. So I can say voltage means potential difference and volt is the unit of that. Okay. Okay, sir. So somebody tell you that we are applying the voltage, that means we are applying the potential difference. So voltage is nothing but it is an application of the potential difference, and volt is the unit of that. So we are never going to tell you, we are never going to speak like we are applying a volt. You always tell that we are applying the voltage. So volt is the unit and voltage is the potential difference. Is that clear? Yes, sir. Okay. So question number 2, 3, 4 you need to prepare. Question number 5 हमने last lecture में discuss किया था कि how does the resistance depend on the dimensions. याद है ये हमने 3 experiment किया था. एक पहले एक simple लिया था, फिर एक सीरीज में दो क्यूबॉइड को कनेक्ट किया था. तो हमने ऐसा प्रूव किया था कि if the length is double then the resistance is also double. So R proportional to L. फिर उसके बाद उसको बीच में से काट दिया था और हमने ऐसा प्रूव किया था कि if the cross section is halved, if the cross section is halved, then also the resistance becomes double. So R proportional to 1 upon A. So combining that, R proportional to L by A. तो यहाँ तक का जो पार्ट है वो एक एक्सपेरिमेंट है
वो एक एक्सपेरिमेंट है, उसको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक का जो पार्ट है वो आपको नहीं पूछेंगे, बट आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि डिस्कस द रेजिस्टिविटी, राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन द रेजिस्टिविटी और एक्सप्लेन द रेजिस्टिविटी। तो ये उसके जो अदर पार्ट है, मतलब ये बाकी का जो पार्ट है, वो आपको एज ए 2 मार्क प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे मैंने पार्टीशन जो किया ना, उसके बाद रेजिस्टिविटी का स्टार्ट हो रहा है। रेजिस्टेंस कैन बी गिवन बाय R is equals to rho L upon A. Here the rho is a proportionality constant is called the resistivity. Its unit is a ohm into meter dimensional formula. It is depend on the material of conductor and the temperature, but it is not depend on the dimension. That is to be noted. Resistivity does not depend on the dimensions. And the definition, if you want to prepare, तो डेफिनेशन अगर आपको बनाना है तो ऐसा कह सकते हैं कि भाई रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट लेंथ ऑफ अ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर L एंड A दोनों 1 हो जाएगा, अगर लेंथ एंड एरिया 1 हो जाएगा, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वही उसका रेजिस्टिविटी हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ अ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डिफाइंड एज अ रेजिस्टिविटी। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो ये चीज आपको 2 मार्क्स में आ सकती है कि एक्सप्लेन द रेजिस्टिविटी। तो ये जो 5th क्वेश्चन है उसमें जो एक्सपेरिमेंट वाला जो पार्ट है वो आपको प्रिपेयर करने की, लर्न बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। वो आपको डायरेक्टली अभी आप याद रख सकते हो कि R is directly proportional to the length, R is directly proportional to the length and it is inversely proportional to 1 upon A. That's why R proportional to L by। ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट था वो पूछने की जरूरत नहीं है, वो पूछाएगा, वो नहीं पूछेंगे, पर उसके बाद जो रजिस्टिविटी वाला जो पार्ट है वो आपको प्रिपेयर करना है। इनफैक्ट CBSE के एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट इज रजिस्टिविटी, राइट डाउन इट्स फॉर्मूला एंड यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला एंड ऑन विच फैक्टर इट इज डिपेंडेंट। तो ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो दैट इज अ वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, what is conductivity and derive the Ohm's law in the vector form। तो ये जो क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन CBSE एंड NCR गुजरात बोर्ड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। कंडक्टिविटी क्या होगा, तो रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है उसको कंडक्टिविटी सिग्मा बोलते हैं। एंड ओहम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म, क्या ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, देखो तो ओहम्स लॉ से स्टार्ट करके हमने J इज इक्वल टू सिग्मा ही प्रूव किया हुआ है कि बाकी है। बता भी दो यारो। सर हो गए। अच्छा, तो ये जो 6th क्वेश्चन है दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैंने आज अभी तक जो आपको करवाया वो 6th क्वेश्चन तक करवाया है। अब 7th क्वेश्चन से सारा कुछ काम जो है वो बाकी है। तो अब मैं 7th सर 5-6 क्वेश्चन, हाउ मेनी मार्क्स? 5th क्वेश्चन में जो हाफ पार्ट है ना, ये इक्वेशन नंबर 4 से, इक्वेशन नंबर 4 से स्टार्ट करके बाकी का जो पोर्शन है वो आपको प्रिपेयर करना है। यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 से, यहाँ से लेके बाकी का जो पार्ट है वो 2 मार्क्स के लिए, उसमें आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन द रेजिस्टिविटी, या व्हाट इज रेजिस्टिविटी, राइट डाउन इट्स फॉर्मूला, इट्स यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला एंड ऑन विच फैक्टर इट इज डिपेंडेंस, इट डिपेंड्स। तो ये जो पूरा चीज है वो आपको एज ए 2 मार्क्स प्रिपेयर करना है 5th क्वेश्चन में से। आगे वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसको खाली याद रखो, उसको समझो खाली, उसको आपको लर्न बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। बट ये जो 6 क्वेश्चन है वो 2 और 3 मार्क्स में 100% पूछने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट इज कंडक्टिविटी एंड डिराइव द ओहम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म और प्रूव दैट द J इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू E। तो ये क्वेश्चन 100% इंपॉर्टेंट है, 2 और 3 मार्क्स। इज दैट क्लियर? ओके सर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन से बाकी है।
सो क्वेश्चन नंबर 7, आप थोड़ा सोचना, मैं आपको बता रहा हूं कि क्या है इस क्वेश्चन में, आपको सोचना है. क्वेश्चन इज व्हाई करंट इज नॉट फॉर्म्ड in the solid conductor in the absence of any electric field. क्वेश्चन ऐसा है कि अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं, अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ऐसा क्यों, ये बताओ. चलो तनिष, आर यू हियर? हाँ सर. अच्छा, मुझे ये बताओ कि कंडक्टर के अंदर क्या होता है. इलेक्ट्रॉन्स और आयन. वेरी गुड, वेरी गुड. तो कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव आयंस होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. मेटल का जब फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है कि मेटल के अंदर, तनिष आपका आवाज म्यूट कर दो ना. जब मेटल का फॉर्मेशन होता है तो उसके जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एटम्स जो होते हैं वो उसके जो एक्सटर्नल मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको फ्री कर देते हैं. सो एटम इज गोइंग टू फ्री डाउन देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो वो जो एटम्स है वो इलेक्ट्रॉन को फ्री करके वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो पॉजिटिव आयंस मेटल के अंदर कुछ स्पेसिफिक लोकेशन पे उसका अरेंजमेंट हो जाएगा, एंड दैट लोकेशन आर नोन एज अ लेटाइस पॉइंट्स. अब वो पॉजिटिव आयंस लेटाइस पॉइंट के आसपास वो वाइब्रेशंस करेंगे उसके मिड मीन पोजीशन के आसपास, और जो ये आयंस है, ये पॉजिटिव आयंस है, उसके बीच के स्पेस में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्री हुए, इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्री फ्रॉम द एटम, वो ये आयंस के बीच में जो स्पेस होता है उसमें रैंडमली मोशन करते हैं. रिमेंबर दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री फ्रॉम द एटम्स but they are not free from the metal, they are residing inside the metal. मेटल में से अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर लाना है तो बहुत सारा एनर्जी प्रोवाइड करना होता है. अभी इलेक्ट्रॉन एटम से रिलीज होके वो फ्री हो गए बट मेटल के अंदर है. तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे रैंडम मोशन करते हैं, जैसे रूम के अंदर गैस मोलिक्यूल्स कैसे रैंडमली मूव होते हैं, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी रैंडम मोशन करते हैं. तो अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा. कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई नहीं किया हुआ है तो उसके जो मोशन हो गए वो 100% रैंडम मैनर में होंगे, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होगा. तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होंगे. तो अगर मैं यहाँ पे अंडर द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारे इलेक्ट्रॉन सब रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो सभी इलेक्ट्रॉन का अगर मैं वेलोसिटी का एवरेज निकालूं, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है तो उसका वेलोसिटी का पहले समेशन करूंगा, वेक्टर सम एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज अ वी एवरेज. तो अगर मैं उन लोगों का एवरेज निकालता हूं वेलोसिटी का, तो मुझे बताओ क्या आंसर आना चाहिए. ये सारे इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव हो रहे हैं, तो अगर मैं उनका एवरेज निकालता हूं तो उसका आंसर क्या आना चाहिए. बताओ फ्रेंड्स. Addition of velocity of each electron divided by number of electrons. हाँ, वो मैंने यहाँ पे लिखा. क्या आपके मोबाइल में ये दिख रहा है मैंने जो इक्वेशन लिखा हो? हाँ सर. हाँ, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए. देखो अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम मैनर में मूव हो रहे हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, तो वैसे कुछ इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में भी हो सकता है. तो अब मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट शुड बी द एवरेज वेलोसिटी, समेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो क्या जीरो. ऑब्वियसली जीरो आएगा, बिकॉज कुछ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो कुछ नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होंगे, कुछ पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में तो कुछ नेगेटिव वाई. तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का वेक्टर सम कर रहा हूं मैं, वेक्टर एडिशन, तो वेक्टर एडिशन जीरो आएगा. मतलब क्या हुआ, मतलब ऐसा हुआ
कि under the absence of any electric field, under the absence of any electric field, the net motion of the charge becomes 0. तो अगर इसका मतलब ऐसा हुआ कि रिजल्टेंट कोई मोशन हो ही नहीं रहा है, तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक करंट की मतलब इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो होता है, कब जनरेट होता है? सर जब इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करे। हाँ, जब इलेक्ट्रॉन का कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन हो, तो यहाँ पे तो नेट मोशन क्या हो रहा है? नेट 0. तो दैट मीन्स अगर नेट मोशन 0 है, तो आई कैन से बिकॉज ऑफ दिस रीजन नो इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस. यहाँ पे कोई मोशन नहीं है, तो रिजल्टेंट मोशन अगर नहीं है तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा. तो वही तो क्वेश्चन था कि अंडर द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाई द करंट इज नॉट फॉर्म्ड इन द कंडक्टर. सो नाउ સર એક ડાઉટ हाँ बोलो. સર કંડક્ટર ની અંદર ચાર્જ છે તો ચાર્જ હોય ત્યાં ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ બી હશે જ તો પછી એવું કેમ કહે છે કે એબ્સન્સ ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ? જે ચાર્જ છે ને એનો ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ એ પોતાના આસપાસના જો આવું હોય, સમજાવું. સરસ ક્વેશ્ચન છે. ઇટ ઇઝ અ વેરી ગુડ ક્વેશ્ચન. Okay, let's assume that this is the conductor. And in the conductor there are many charges, positive ions and electron. Now the positive ions are doing what? They are just vibrating. Positive ion are just vibrating along its mean position. और उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो उसके आसपास के थोड़े रीजन के लिए ही प्रेवेलिंग होता है. तो सारे जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आसपास प्रेवेलिंग होते हैं, और वो भी वाइब्रेशन हो, वो भी चार्ज भी वाइब्रेट करते हैं, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंटिन्यूअसली वेरी होता है, रैंडमली वेरी होता है. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी रैंडम है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी रैंडम है. तो उसका भी अगर हम नेट समेशन, वेक्टर समेशन करेंगे तो वो क्या मिलेगा? 0. तो 0 मिलेगा. तो इसका मतलब क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे 0. 0 ही मिलेगा. तो इसके वजह से कोई इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इसके वजह से कोई इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड है बट वो भी रैंडम मैनर में है. तो वो इंटरनल जो चार्ज है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन को मोशन नहीं करा सकता है. इज दैट क्लियर टू यू? હા સર, એટલે એક્સટર્નલ ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ આપીશું તો એ પર્ટિક્યુલર ડાયરેક્શન માં થવા લાગશે. Exactly. So in the absence of, more precisely here the sentence should be, why current is not formed in the solid conductor in the absence of એક્સટર્નલ field. That should be the more precise sentence. Is that clear? देखो आंसर में लिखा हुआ है. आंसर में क्या लिखा हुआ है? देखो, in the absence of external electric field लिखा हुआ है. देखो, देखा? હા સર, ઓકે. ओके. तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज का होता है, बट वो करंट को जनरेट करने के लिए एबल नहीं है. इज दैट क्लियर? યસ સર. ओके. चलो, अब तक मैंने कोई बैटरी कनेक्ट नहीं किया था, अब तक मैंने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं किया था. तो हमने प्रैक्टिकली देख लिया, हमने थ्योरेटिकली देख लिया, प्रैक्टिकली एज वेल एज थ्योरेटिकली हमने ये देख लिया कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आप बाहर से अप्लाई नहीं करते हो तो डेफिनेटली कोई करंट जनरेट, बोलो, जनरेट નહીં હોગા. नहीं होगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? बोलो, कोई बताएगा मुझे? એક્સટર્નલ ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ અપ્લાય કર. एग्जैक्टली. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में
हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। अब ये जो 7th क्वेश्चन था वो एज ए लर्न बाय हार्ट, जो 7th क्वेश्चन अभी तक हमने डिस्कस किया वो ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन है आपको। वो खाली इतना ही बता रहा है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई नहीं किया हुआ है तो कोई करंट जनरेट नहीं होगा। बट अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है। तो ये जो 8th क्वेश्चन है वो आपको एज ए प्रिपेयर लर्न बाय हार्ट प्रिपेयर करना है। ये क्वेश्चन 3 और 4 मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिराइव द, ये निकाल दो, इक्वेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Derive the equation of a drift velocity of electron in the presence of electric field. हेलो। हाँ बोलो तनिष, बोलो तनिष। तनिष है वहां पे? तनिष सर शायद तक फोन आया होगा उसे। अच्छा, तो अब हमारा टारगेट क्या है कि जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो नेट वेलोसिटी 0 थी, एवरेज वेलोसिटी अगर निकाल देते तो वो 0 थी। बट अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कुछ वेलोसिटी मिलेगा, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो अब मुझे वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना है। अब मुझे वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना है। तो अब जो टारगेट है वो क्या है फ्रेंड्स? टारगेट ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा है कि डिराइव द फॉर्मूला ऑफ अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एक्सप्लेन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी अंडर द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हम प्रेजेंट करने वाले हैं और हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ओके, सो द टॉपिक नेम इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या आपके मोबाइल में फ्रेंड्स ये व्हाइट बोर्ड आ गया है? हाँ सर। Okay, the name of the topic is a drift velocity. अब मैं सपोज के ये कोई कंडक्टर है, अब ये कंडक्टर के अंदर इसके अक्रॉस मैं पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी कनेक्ट कर रहा हूं। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने पॉजिटिव टर्मिनल अप्लाई किया एंड यहाँ पे नेगेटिव है। तो कोई मुझे बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा? श्रेया गोयल, श्रेया, अरे आवाज आवाज तुम्हारे, आपके वहां से आवाज आता है। हाँ सॉरी सर। ओके, ये चलो मैंने यहाँ पे बैटरी के ये कंडक्टर को मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मैंने यहाँ पे लगाया, नेगेटिव यहाँ पे लगाया। तो कोई मुझे बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में अप्लाई होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, करेक्ट। So electric field will be applied in this direction, positive to negative. अब यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव आयंस वाइब्रेट कर रहे होते हैं,
पॉजिटिव आयंस यहाँ पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने अप्लाई किया वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, इट इज हायर फ्रॉम द हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, और यहाँ पे इन स्पेस बिटवीन द आयंस देयर आर मेनी इलेक्ट्रॉन्स। अब कोई एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लो, कोई एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेते हैं, तो ये जो पाथ है वो एक इलेक्ट्रॉन का पाथ है। तो ये जा रहा था ए से बी पे, और ये तब की बात है जब मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था। कोई एक इलेक्ट्रॉन का मैंने मोशन अज्यूम कर लिया, और ये तब की बात थी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया। बट अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले ए से बी जा रहा था, तो वो थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड खिसकेगा या राइट साइड खिसकेगा, तो बताएगा मुझे। अंडर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज। सर ऑपोजिट था, ऑपोजिट डायरेक्शन है, लेफ्ट तो हैंड जो इलेक्ट्रॉन पहले ए से बी पहुंच रहा था, जो इलेक्ट्रॉन पहले ए से बी पहुंच रहा था, वो इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा, थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से थोड़ा शिफ्ट होगा उसका। इन प्लेस ऑफ बी इट विल मूव टू द बी डैश। तो उसी इलेक्ट्रॉन का अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद उसका अगर हम मोशन सोचे, तो वही इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो पहले ए से बी जा रहा था, बट अब वो कहाँ ए से बी डैश जाएगा, मतलब वो थोड़ा डेविएट होगा, उसका थोड़ा डेविएशन होगा इन द अपोजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, चलो बता दो, कोई मुझे बताएगा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स ऑन द चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। EQ. हाँ, QE, बट इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। चलो कोई मुझे बताएगा व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन इज इंडिकेटिंग? ऑपोजिट डायरेक्शन। हाँ, ये ऐसा शो कर रहा है कि चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। सो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स देयर आर सम एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। और कोई बताएगा व्हाट डज दैट एक्सेलरेशन इज? V/m. So acceleration is equals to force upon the mass. इसका हो जाएगा माइनस E by m. So this will be the acceleration produced. This is the acceleration produced by because of the presence of electric field. तो ये एक्सेलरेटेड मोशन में आएगा चार्ज, और वो क्या करेगा पता है? वो चार्ज एक्सेलरेटेड होके वो मोशन करने लगेगा, बट वो क्या करेगा कि वो जो आयंस है उसके साथ कंटिन्यूअसली कोलाइड करेगा, कोलिजन करेगा। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आयन के साथ कंटिन्यूअसली कोलिजन करेगा। एक बार कोलिजन हुआ, वापस से एक्सेलरेट हुआ, वापस से दूसरी बार कोलिजन होगा, तो ऐसे कोलिजन करके 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 वो आगे बढ़ेगा। इसीलिए मैंने उसका जो पाथ है ना वो डॉटेड लाइन से शो किया हुआ। देखो, पहला जो पाथ था वो स्ट्रेट था, बट उसके बाद जो मैंने पाथ शो किया वो डॉटेड लाइन से शो किया, बिकॉज वो डॉटेड लाइन ऐसा शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आयंस के साथ कंटिन्यूअसली कोलाइड होते 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 आगे बढ़ता है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि ये रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होने का रीजन, कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होने का रीजन ये कोलिजन ही है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कंडक्टर के अंदर आयंस के साथ कोलाइड करके आगे बढ़ते हैं, कोलिजन करके आगे बढ़ते हैं, और ये कोलिजन के द्वारा ही रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। अब कंसीडर ओनली वन इलेक्ट्रॉन, कंसीडर ith इलेक्ट्रॉन। कोई एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर लो।
अभी मैं कोई एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर रहा हूं, उसके बाद सारे इलेक्ट्रॉन को एक साथ में कंसीडर करूंगा। अभी मैं कोई एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर रहा हूं, उसके बाद मैं सारे इलेक्ट्रॉन को एक साथ कंसीडर करूंगा। तो अभी कोई एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर लो, उसको मैं नाम बोलूंगा ith इलेक्ट्रॉन है। अब सोचो कि उसने एक बार कोलिजन किया और it will experience the another collision. It after one collision, उसका जो सेकंड कोलिजन होता है, अज्यूम करते हैं कि सेकंड कोलिजन टेक्स प्लेस, उसका जो सेकंड कोलिजन है वो ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि सेकंड कोलिजन टेक्स प्लेस आफ्टर Ti टाइम। ith इलेक्ट्रॉन है इसलिए मैंने उसका टाइम Ti अज्यूम किया हुआ है। तो एक कोलिजन के बाद दूसरा कोलिजन के लिए जो टाइम इंटरवल है वो मैंने Ti अज्यूम किया हुआ है। मतलब Ti, I can say Ti is the time between the two successive collision of a ith electron. Suppose its velocity just after first collision is a vi। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि उसका जो वेलोसिटी है वो पहले कोलिजन के बाद vi है। सो कोई मुझे बताएगा कि वेलोसिटी of this electron after Ti time। चलो कोई मुझे बताएगा, पहले कोलिजन के जस्ट आफ्टर उसका वेलोसिटी vi है, तो Ti टाइम पास होने के बाद, मतलब दूसरा कोलिजन होने वाला है, वो टाइम इंटरवल में उसका लास्ट वेलोसिटी क्या होगा? कोई बताएगा मुझे? पहले कोलिजन के जस्ट आफ्टर द फर्स्ट कोलिजन उसका जो वेलोसिटी है वो vi है। तो मैं ऐसा बता रहा हूं कि अब Ti टाइम पास होने के बाद, Ti टाइम पास होने के बाद उसका वेलोसिटी अगर मैं कैपिटल Vi अज्यूम करता हूं, कैपिटल Vi, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द कैपिटल Vi? कोई मुझे बताएगा? V0 plus 80। वेरी गुड। तो फाइनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो सही बात है कि अगर एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो हम इसको V0 plus 80 बोलते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे V0 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? Vi। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो स्मॉल vi है, ये तो मैंने कैपिटल Vi बोला हुआ है, तो इनिशियल स्मॉल vi। चलो एक्सेलरेशन क्या लिखूं मैं? E capital E by M माइनस में एंड इनटू Ti। क्या ये आपको समझ में आया? क्या ये फॉर्मूला सबको समझ में आया? यस सर। यहां तक सब पहुंच गए? यस सर। ओके, बट ये तो अभी किसकी बात है? ये जस्ट एक इलेक्ट्रॉन की बात है, ये तो खाली एक ही इलेक्ट्रॉन की बात है। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे सारे इलेक्ट्रॉन को एक साथ सोचना है। सो कंसीडरिंग ऑल n इलेक्ट्रॉन्स, अगर सारे इलेक्ट्रॉन को एक साथ सोचते हैं तो वी शुड टेक, बोलो मुझे क्या करना चाहिए? तो फिर बोलो क्या करना चाहिए? वेक्टर एडिशन। वी शुड टेक द एवरेज ऑफ इक्वेशन 1। तो मुझे इक्वेशन 1 का
एवरेज निकालना चाहिए। तो एवरेज कैसे निकाल सकते हैं हम? तो मतलब यहाँ पे सब तीन ऑल वी हैव टू टेक द एवरेज ऑफ ऑल द थ्री टर्म्स। मतलब कैपिटल वी आई एवरेज, स्मॉल वी आई एवरेज माइनस ई बाई एम इंटू टी आई एवरेज। अब यहाँ पे एवरेज टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, आपको पता है कि टी आई क्या है? टी आई इज द टाइम इंटरवल ऑफ द कोलिजन ऑफ द वन इलेक्ट्रॉन ith इलेक्ट्रॉन। टी आई इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन विद द आयंस ऑफ अ ith इलेक्ट्रॉन। बट सारे इलेक्ट्रॉन का अगर जो वो सक्सेसिव कोलिजन का जो टाइम है उसका एवरेज निकालते हैं तो उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। सो द एवरेज टाइम between two successive collision, average time between the two successive collision is defined as relaxation time। इसको रिलैक्सेशन टाइम टाउ बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टी आई एवरेज जो है वो हो जाएगा टाउ हो जाएगा। अब दूसरी बात, चलो मुझे ये बताओ कि जब इलेक्ट्रॉन कोई आयन के साथ कोलाइड होगा तो कोलाइड आफ्टर जस्ट आफ्टर कोलिजन उसका वेलोसिटी कोई रैंडम डायरेक्शन में होगा। अगर कोई पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स के साथ कोलाइड होता है तो जस्ट आफ्टर कोलिजन उसका जो मोशन होता है वो किसी भी डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन में होता है। तो ये जो वी आई है ना, स्मॉल वी आई, वो क्या है? वो तो वेलोसिटी आफ्टर द जस्ट आफ्टर द कोलिजन। मतलब अलग अलग इलेक्ट्रॉन जब आयंस के साथ कोलाइड हो गए तो आफ्टर कोलिजन वो सब अलग अलग रैंडम डायरेक्शन में मोशन में आएंगे। कोलिजन के बाद वो पता नहीं कहीं पे भी जा सकते हैं, वो तो उसके बाद उसके ऊपर फोर्स लगता है और फिर वो कोई एक डायरेक्शन में आते हैं। बट जस्ट आफ्टर द कोलिजन तो वो तो कहीं पे भी जा सकते हैं। तो मुझे ये बताओ कि ये जो वी आई एवरेज है, स्मॉल वी आई एवरेज, मतलब 1/n समेशन ऑफ ऑल द वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल वी आई, तो ये क्या इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर क्या आना चाहिए? 0। 0। क्यों? बिकॉज जस्ट आफ्टर कोलिजन electron can move in any of the random direction. Electron can move in any random direction. So that's why the summation of that comes out to be 0. एंड ये कैपिटल वी आई का जो एवरेज है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन का जो टी आई टाइम के बाद जो वेलोसिटी मिलता है उसका एवरेज जो है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय वी डी। तो अब ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पे कैपिटल वी आई का जो एवरेज है उसको वी डी बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। कैपिटल वी आई का जो एवरेज है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब वी डी बोलेंगे। अब स्मॉल वी आई का एवरेज क्या मिल गया मुझे बताओ फ्रेंड्स? 0। तो स्मॉल वी आई का एवरेज तो मुझे मिल गया 0। बाकी बचेगा माइनस ई बाई एम, और ये जो टी आई का जो एवरेज था वो क्या मिला मुझे? द एवरेज टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, तो उसको क्या बोलेंगे हम? एवरेज टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन को बोलेंगे हम रिलैक्सेशन टाइम टाउ। तो वो तो रिलैक्सेशन टाइम टाउ है। तो फाइनली हम ऐसा कह सकते हैं
कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं हम। तो vd इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम इंटू टाउ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में माइनस ई बाई एम इंटू टाउ। Once again, this formula is suggesting the same thing, that electron gets the velocity, electron get the drift velocity, but in the direction opposite the electric field. Obviously, electron का जो drift velocity मिलेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ही मिलेगा, ऑब्वियसली, बिकॉज उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ही लगता है. So this negative sign indicating is the electron is moving in the opposite direction of the electric field. बट अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ओनली द मैग्नीट्यूड, तो आई कैन से इट इज ई बाई एम इंटू टाउ. तो ये मुझे मिल गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला. अब यहाँ पे जो राइट साइड जो चीज है वो सारे चीज कांस्टेंट है. देखो अभी एक जबरदस्त चीज मैं आपको बोलने वाला हूँ. ये एक जबरदस्त चीज मैं आपको बोलने वाला हूँ. देखो बहुत ही जबरदस्त है. अब देखो यहाँ पे राइट साइड का जो भी टर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है या फिर मास है या रिलैक्सेशन टाइम है, तो ये सारे चीज टाइम के साथ वेरी नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट है. इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने जो अप्लाई किया वो कांस्टेंट होगा. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द रिलैक्सेशन टाइम, ये टाइम, रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम बिटवीन द टू कोलिजन, वो फिक्स्ड होता है. तो ये सारे चीज जो है वो फिक्स्ड है, मतलब ये कांस्टेंट टर्म है. मतलब क्या हुआ, बहुत जोरदार हुआ फ्रेंड्स. यहाँ पे देखो, सोचो ये पहली बार हो रहा है कि एक्सेलरेशन होने के बावजूद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा एक्सेलरेशन प्रोवाइड हो रहा है. बट एक्सेलरेशन प्रोवाइड होने के बावजूद जो फाइनली इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी रहता है, उसके सारे इलेक्ट्रॉन का एवरेज निकालते हैं तो वो कांस्टेंट मिलता है. मतलब ये कैसा हुआ कि दो द एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट but still the electrons are moving like a constant velocity. देखो ये कंट्रोवर्शियल हुआ. एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप एक्सेलरेशन प्रोवाइड करते हो तो या तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बढ़ना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए. बट यहाँ पे ये फॉर्मुलेशन हमने किया तो फाइनली ऐसा पता चला कि एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो भी अगर हम एवरेज निकालते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन के जो एवरेज वेलोसिटी मुझे मिलता है वो कुछ कांस्टेंट मिलता है. तो एक्सेलरेशन होने के बावजूद इलेक्ट्रॉन आर मूविंग लाइक दे आर मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी. हाउ डज इट पॉसिबल? चलो मैंने क्या क्वेश्चन पूछा वो आपको समझ में आया? एक्सेलरेशन प्रेजेंट होने के बावजूद इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे है, दैट इज अ क्वेश्चन. चलो कोई बताएगा इसमें से, आप में से कोई ऐसा क्यों हो रहा है? સર ટાઈમ સેમ ટુ સેમ લેતો હશે એટલે દરેક કોલિઝન में. देखो अगर एक्सेलरेशन है तो या तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बढ़ना चाहिए या तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी डिक्रीज होना चाहिए. बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. इसका रीजन ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन है ना वो कंटिन्यूअसली आयंस के साथ कोलाइड हो रहे हैं. मतलब जैसे ही उसको एक्सेलरेशन मिलेगा उसका वेलोसिटी बढ़ने का ट्राई होगा, वापस से वो कोलाइड हो जाएगा, वापस से वेलोसिटी बढ़ेगा, वापस से वो कोलाइड हो जाएगा. मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे स्मूथ नहीं जा रहा है, उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है. वो कंटिन्यूअसली आयंस के साथ कोलाइड हो रहे हैं. सो बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोसेस उसका फाइनली उसका वेलोसिटी अगर एवरेज निकालते हैं तो वो कुछ कांस्टेंट हो जाता है. तो यहाँ पे मैं ऐसा कह सकता हूं कि दो द एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट but still the motion of electron is considered to be a motion with a constant velocity. The reason behind it is electron are continuously collide with the ions present in the metal, and because of that averagely the motion of electron will not be remains with some acceleration. It becomes with some constant velocity.
So is that clear to you? Friends, क्या ये चीज समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ये थ्योरी समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. अब सोचो यहाँ पे नेट वेलोसिटी जीरो नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉन का नेट वेलोसिटी जीरो नहीं हो रहा है, मतलब कि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और कौन से डायरेक्शन में, तो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन, कौन से, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। देखो ये नेगेटिव साइन जो आ रही है वो ऐसा शो कर रहा है कि जो वेलोसिटी हमको मिल रहा है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, मतलब कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में अब वेलोसिटी मिल रही है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि नेट मोशन ऑफ द चार्ज विल नॉट बी जीरो। तो इसका मतलब डेफिनेटली क्या होगा? करंट फ्लो रहा है। परफेक्ट। नाउ बिकॉज ऑफ, सर एक मिनट, बिकॉज ऑफ दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट इज फॉर्म्ड। चलो बताओ क्या पूछना चाहते हो? सर हमने पहले वो लॉज ऑफ मोशन जो 11th में चैप्टर था उसमें ऐसा पढ़ा था कि वेलोसिटी 3 तरह से चेंज होती है, तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया है, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर में अप्लाई कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे देखो वेलोसिटी नहीं, यहाँ पे देखो फाइनली फॉर्मूला क्या मिला? वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं मिला है, वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है। वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ही है, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। देखो जो ये वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, देखो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ही है, मतलब ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो नहीं है एक्सेलरेशन के। देखो ये E/m तो सर, तो एक्सेलरेशन, वैसे तो डिक्रीज होनी चाहिए वेलोसिटी। हाँ तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि वो क्यों नहीं हो रहा है, तो उसके लिए तो मैंने आपको पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज जनरली जो मोशन होते हैं उसमें कोलिजन नहीं होता है। कोई अगर हम व्हीकल चलाते हैं तो जैसे ही हम एक्सेलरेट करेंगे तो उसका वेलोसिटी बढ़ता ही जाएगा। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रास्ता ऐसा स्मूथ नहीं है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का रास्ता ऐसा स्मूथ नहीं है, उसको बहुत सारे आयंस के साथ कोलाइड करके जाना होता है, और बिकॉज ऑफ दैट कंटिन्यूअस कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद द आयंस, उसका जो मोशन रहता है वो खरेखर उसका मोशन कैसा होना चाहिए था, वो उसका वेलोसिटी इंक्रीज होना चाहिए था। नेगेटिव डायरेक्शन वो ऐसा शो नहीं कर रहा है कि वो डिक्रीज हो रहा है, वो ऐसा शो कर रहा है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहा है। एक्चुअली क्या होना था? एक्चुअली ऐसा होना था कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली बढ़ता जाना चाहिए था, बट क्या होगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली आयंस के साथ कोलाइड होते 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 आगे बढ़ेंगे, मतलब जैसा ही थोड़ा वेलोसिटी बढ़ा वापस से जीरो हो गया बिकॉज ऑफ द कोलिजन, वापस से बढ़ा तो वापस से जीरो हुआ, वापस से बढ़ा वापस से, मतलब पूरा होल एंड वन अगर आप पूरा सोच लेते हो तो नेट मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी रिमेन्स अ एक्सेलरेटेड वन, इट विल बिकम्स विथ सम कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जनरल और इलेक्ट्रॉन के कंडक्टर के अंदर का मोशन में यही तो फर्क है, तो यही तो चीज कंट्रोवर्शियल है, और यही तो ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्सेलरेशन है कंडक्टर के अंदर, तो भी उसका मोशन एक्सेलरेटेड नहीं है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला है। क्यों? बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ स्मूथ, it is with the continuous collision of the ions with the ions, and that happened because of this fact. Is that clear to you? सर तो मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड भी एमिट नहीं, रिलीज नहीं करेगा ना? वो करेगा, Accelerated नहीं है। बट वो मैग्नेटिक फील्ड के जो, देखो एक चीज आप समझ लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड या खुद के मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उसके ऊपर कुछ नहीं होता है। चार्ज खुद इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बट वो खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा खुद के ऊपर फोर्स प्रोड्यूस नहीं होता है। चार्ज के खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा उसके खुद के ऊपर, हम मास है तो हमारे आसपास हमारा खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, वो ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे ऊपर फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। क्लियर?
तो उसका तो इफेक्ट भूल ही जाओ, मतलब चार्ज का खुद का जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है वो तो उसके ऊपर इफेक्ट करेगा ही नहीं, उसको तो भूल जाओ। सर नहीं, मतलब अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी में मोशन कराए तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। जनरेट करेगा ना, तो ये जो फोर्थ चैप्टर है वही तो है, फोर्थ चैप्टर हम वही पढ़ने वाले हैं कि ये चार्ज मोशन कर रहा है कंडक्टर के अंदर, तो उसके द्वारा जो उसके द्वारा करंट प्रोड्यूस होगा। अब ये करंट, अब हम यहाँ पे कब तक कहाँ तक पहुंचे, ये टॉपिक में लास्ट में मैंने क्या लिखा, देखो देखो तो मैंने क्या लिखा लास्ट में, रीड करो मैंने क्या लिखा लास्ट में। नाउ बिकॉज ऑफ दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट इज फॉर्म। हाँ, तो करंट फॉर्म हुआ, तो अब फोर्थ चैप्टर हाँ। क्या करेंगे, ये करंट के द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो फाइंड करेंगे। अभी तक हमने करंट प्रोड्यूस किया और वो करंट का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मतलब आप जो बोल रहे हो वही, ये चार्ज का मोशन का मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो फोर्थ चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। इज इट, क्या ये चीज समझ में आया आपको? यस सर। देखो अब जो क्वेश्चन मैं चलाने वाला हूं, अब जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये 100% अब जो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं वो गारंटेड आपके एग्जाम में पूछेंगे 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 100%। अब जो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं वो पूछेंगे, अगर नहीं पूछाया, अगर वो नहीं पूछा तो आप खड़े होके सुपरवाइजर को बचकू बोल लेना। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन है दैट इज द रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। देखो लास्ट स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा, एक बार फिर से पढ़ो लास्ट स्टेटमेंट। तनिष क्या लिखा मैंने? बिकॉज ऑफ दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट इज फॉर्म। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि देयर मस्ट बी सम रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देयर मस्ट बी सम रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये रिलेशन कौन सा है वही हमको प्रूव करना है। तो अब जो क्वेश्चन है वो 100% पूछ सकते हैं, एंड द क्वेश्चन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगे ना। डायरेक्टली होगा ऑब्वियसली, जितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगा उतना करंट ज्यादा बढ़ेगा, सही बात है, बट उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला लाना है, मुझे उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला लाना है। तो डिराइव इक्वेशन ऑफ करंट डायमेंशनल एनालिसिस नहीं कर पाओगे, करंट इन द फॉर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। ओके, assume that there is a cross section of a conductor। ऐसा assume कर लो कि ये कंडक्टर है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब मैं ऐसा सोच सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन कैसे मोशन कर रहा है, बोलो इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है, अब मैं ऐसा सोच सकता हूं कि उसका मोशन कैसा है। ऑपोजिट। हाँ वो तो ऑपोजिट ही है, बट वो एक्सेलरेटेड मोशन है या कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन है? कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ वैसे एक्सेलरेशन अप्लाइड किया हुआ है, बट तो भी इलेक्ट्रॉन का जो फाइनल मोशन हो रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला हो रहा है। अब मेरा जो टारगेट है वो क्या है, करंट का फॉर्मूला फाइंड करना। तो आपको पता है कि करंट इज इक्वल टू क्या होता है, तो अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट। इज दैट क्लियर? हाँ के ना? अरे हाँ तो हाँ सर। यस सर। अब मुझे चार्ज फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है आपको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज आपको पता है कि इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कैपिटल एन एंड द चार्ज इक्वल्स टू एनी,
तो अगर मुझे चार्ज फाइंड करना है तो मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ यूनिट टाइम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डेल्टा टी इंटरवल टाइम, डेल्टा टी इंटरवल टाइम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अगर वो मैं फाइंड कर दूं तो मुझे चार्ज मिल जाएगा, चार्ज के द्वारा करंट मिल जाएगा। सपोज the charge, suppose the electron, एक मिनट, मुझे ये चार्ज करना पड़ेगा। ओके, तो सपोज इन डेल्टा टी इंटरवल टाइम, सपोज in delta t interval of time, electron are passing from any cross sectional area A. चलो कोई मुझे बताएगा कि वो डेल्टा टी इंटरवल टाइम में इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। डेल्टा टी इंटरवल टाइम में इलेक्ट्रॉन कितना डायरेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू डेल्टा टी। या तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू, कैन आई से वीडी डेल्टा टी। क्या यहां तक समझ में आया? यस सर। तो अब मुझे ये बताओ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने वॉल्यूम में रहेंगे, मतलब अगर डिस्टेंस उसका वीडी डेल्टा टी है तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन वीडी डेल्टा टी इनटू एरिया। कोई मुझे वॉल्यूम बताएगा कितने वॉल्यूम में होंगे वो, कंडक्टर के कितने वॉल्यूम में होंगे वो, कोई बताएगा? एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। किसको मल्टीप्लाई करेंगे एरिया से? वीडी डेल्टा टी को। हाँ, तो अगर मैं ये वीडी डेल्टा टी को अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? चलो यहां तक यस सर। तो यहां तक समझ में आया? यस सर। नाउ suppose number density of a free electron is a n, small n। चलो तो small n is equals to क्या होगा? Number of electrons per unit volume। So this will be the number of electrons per unit volume। मतलब ऐसा हुआ कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? तो नंबर ऑफ डेंसिटी इज इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमारे पास कितना वॉल्यूम है? तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो बताओ। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डेल्टा टी इंटरवल टाइम, इन डेल्टा टी इंटरवल टाइम, ये डेल्टा टी इंटरवल टाइम में जो भी इलेक्ट्रॉन थे वो कितने वॉल्यूम में थे? एवीडी डेल्टा टी वॉल्यूम में थे। तो उस वॉल्यूम के अंदर अभी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? तो अगर 1 मीटर क्यूब में वो स्मॉल n है तो एवीडी डेल्टा टी वॉल्यूम में कितने हो गए? तो कितने हो गए फ्रेंड्स? अरे बता भी दो। एन ए वी डेल्टा टी। एन ए वी डी डेल्टा टी। तो ये मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गया। तो फिर चार्ज कितना होगा फ्रेंड्स? चार्ज कितना होगा? सो चार्ज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ई। तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन ए वी डी
डेल्टा टी है उसको अगर ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो चार्ज मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट कितना मिलेगा? तो इलेक्ट्रिक करंट कितना मिलेगा? तो इट इज द चार्ज पर। NAVDE। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला अगर डेल्टा टी से डिवाइड कर दो तो बाकी रहेगा NAVDE। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द फॉर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन है। यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि n जो है ना वो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट शुड बी नोटेड। अब मुझे करंट डेंसिटी फाइंड करना है, करंट डेंसिटी। तो अगर I/A को सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाते तो क्या मिल जाएगा? तो बट I/A तो आपको पता है कि करंट डेंसिटी है। तो अगर करंट डेंसिटी के बारे में सोचते हैं तो इट बिकम्स NVDE। तो आपको याद ऐसे रखना है कि करंट का जो फॉर्मूला है वो नाउडी इज दैट क्लियर? नाउडी। बट हाँ सर। नवडी, करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो नवडी है। Yes. तो करंट का क्या है? नावड़ी। मिस्टर विश्वास, Yes, sir. आवड़ी के नावड़ी? आवड़ी 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 के नावड़ी? નાવડી नावड़ी के आवड़ी? સર એટલે ફોર્મ્યુલા પૂછો છો કે हाँ, पूछो तो करंट का जो फॉर्मूला है वो I इज इक्वल टू नावड़ी को आउट। तो करंट का फॉर्मूला नावड़ी जे આપણને आवड़ी एंड करंट डेंसिटी का फॉर्मूला जो है वो नवड़ी है। अब वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो करंट प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होता है वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। कन्वेंशनल करंट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी, दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन इज अपीयरिंग बिकॉज द करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है ना वो करंट के डायरेक्शन में होता है। करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो करंट के डायरेक्शन में होता है एंड करंट ऑलवेज फॉर्म्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कोई और चार्ज होता तो ये फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते थे, इलेक्ट्रॉन के बदले जो चार्ज है वो। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये इक्वेशन ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए। आज का जो लेक्चर था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 ये 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए और आगे का सारा रिवीजन किया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 तीनों क्वेश्चन आपको 2 टाइम्स होमवर्क में लिखना है। ऑल द 3 क्वेश्चन यू हैव टू राइट डाउन 2 टाइम्स इन द होमवर्क। एंड ये जो 9th क्वेश्चन था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। किसी को कुछ पूछना है?